Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important sources, that is the Hindu and Indian Express. So let's get started the topic. So these are the list of the topic for today. Today is 6th of August. So the first topic is books not bullet in JNK. Second is nuclear vulnerabilities, which is there. No, we are marking the anniversary of Hiroshima and Nagasaki. The China's stand on the Article 370, and the last topic is urban migrant and the hardship. So apart from these topics, we'll have some MCQs question at the end of this video and the explanation of questions, the answer which is there. So उसके जो explanation है वो भी मैं आपको बताऊंगा. And those of you who are new to channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to hit a like button on this video. So the first topic is books not bullet in the JNK. This is by Ramesh Pokhriyal. He is a Union Education Minister, and as you know that Ministry of HRD is now Ministry of Education, which was there in the news, and this is only after the National Education Policy which was in the action. So this news you can find in the Hindu, and talking about the relevance of this news, this is very important for your General Studies paper 2, and at the same time this is important for your General Studies paper 4, where a direct question can be correlated and asked in the basically case studies, right? So let's get into details of this. So as you know that Jammu Kashmir has witnessed a proxy war and violence for more than 3 decades. This is not new. It has already continued for past 30 years. And most adversely affected section of this during this time, during this era of this of this state was society, that was basically the children and the youth of this region. सो जम्मू कश्मीर अगर स्पेसिफिकली अब बात करूँ तो दो सेक्शन जिसको सबसे ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ा है वो है चिल्ड्रंस, वहाँ के यूथ, वहाँ पे जो रोजगार की इशूज़ है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई है. सो दीज दे हैव ऑल नो सब्सटैंशियली टाइम इट हैज़ मल्टीप्लाइड. उसके बाद अगर बात करें जो हिस्टोरिक डे थी 5 of August 2019, तो दिस मार्क द डे व्हेन द जम्मू कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, that is Jammu and Kashmir and Ladakh. So this has opened a new avenues to create a plethora of opportunities for the people. So this is written on the positive note. Yesterday we have discussed the editorial where the negative aspects were discussed. So we are more discussing here on the positive note of this decision of the government, and at the same time how education can change, can make a paradigm shift in the area, right? Now focus on the education has been made. So talking about the center focus, so the quality education is something which is very mandatory in this area. So the National Education Policy 2020 will definitely help the young minds of the Jammu and Kashmir and the Ladakh regions. And talking about the children, teachers and the education department, they have the sudden new responsibility because the education ecosystem in the state have changed, and the central has taken the responsibility. It would ensure quality, equality and access to education to all child. So the entire aim of the national education policy is to impart a high quality education to every citizen belonging to every category, be it at any caste, gender or sex. Now talking about the approval of the central university that was also there in the Ladakh. After this, the central has announced that there would be a central university, and grant in tune would be accordingly provided with the committee made by the people in the hilly region. So this is something which would promote a quality education in the Ladakh region. Now talking about the university, this would also act as a landmark by providing quality educations to the student not only for the Ladakh region but also for the border areas of Himachal Pradesh region, because this is adjacent border areas where the students from the Himachal Pradesh would be equally benefited. Now the university campus has also made the center for Buddhist students. So this would be a demand of local people. As you know that Ladakh is one of the beautiful place when it's come to tourism, and it got lots of monasteries, Buddhist monastery, and the people associated there want that there should be a dedicated college and center for Buddhist learning. तो किसी भी जगह पे जो वहाँ पे जो केंद्रित है उस चीज़ को, वहाँ पे उसी हिसाब से एक सेंटर बनाना वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा. And at the same time, to ensure universalization of the education, Right to Education Act 2009 been extended in the Jammu and Kashmir at its final stage. उसके अलावा सरकार की जो कोशिश है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ऑन द एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट जम्मू कश्मीर रीजन इज अ फोकस एरिया along with the large scale curriculum reforms.
तो ज़रूरत है कुछ स्किलिंग की जाए, लोगों को मास स्किलिंग देने की ज़रूरत है, बिकॉज इन जम्मू एंड कश्मीर वी डू नॉट हैव फैक्ट्रीज, सो पीपल देयर आर नॉट गेटिंग अ गुड स्किलिंग क्वालिटी ओवर देयर, राइट। तो एक स्किलिंग दे करके अगर कोई माइग्रेट करके दूसरे शहरों में जा करके जहाँ पे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है या वहाँ के एंटरप्रेन्योरियल खुद वहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सो दिस वुड बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर। वी नीड टू हैव अ गुड टीचर ट्रेनिंग, अ क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। जब तक बेसिकली मूलभूत सुविधाएं नहीं होगी, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब ये तक उस समय तक ये काफ़ी मुश्किल होगी कि लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके विथ ऑल द बेसिक एम्यूनिटीज रिक्वायर्ड, राइट। एंड इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी, तो आज के इस एरा में जो हमारी तकनीकी है या फिर जो टेक्नोलॉजी है, दैट हैज़ टू बी श्रिंक विद द एजुकेशन। तो शिक्षा और जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, दोनों को हमें एक साथ समावेश करना है सो दैट इट गेट द मैक्सिमम आउटपुट, राइट। नाउ वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो 50 न्यू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैज़ बीन इनकैप्सुलेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड दैट हैज़ बीन सैक्शनड ऑन द मेन ऑपरेशनल एरियाज, और 90 न्यू मॉडर्न स्कूल हैव बीन ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द पैटर्न ऑफ जो हमारे केंद्र विद्यालय है उसी पैटर्न पे और भी स्कूल्स बनाए गए हैं, एंड दैट वुड बी डेवलप्ड इन द नेक्स्ट 3 years। सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ टारगेट कि अगले 3 वर्षों में इस तरह के स्कूल्स डेवलप किए जाएँ। उसके अलावा अपग्रेडेशन ऑफ जो हमारी स्मार्ट आईटी इनेबल्ड क्लासरूम है, क्योंकि आप देखोगे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या फिर जो इंटरनेशनल स्कूल हैं वहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम होती है। स्मार्ट क्लासरूम का मतलब होता है कि सारी चीज़ें बच्चों को डिजिटली बेसिकली डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई जाती है, एनिमेटेड वीडियोस दिखाए जाते हैं, ताकि जो उनकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसकी क्लैरिटी अच्छे से बन पाए, राइट। So this is the time of the COVID-19 era that government want to the upgrade the quality of education via technology। एंड जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पे जो एजुकेशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो भी बनाई गई थी, और उस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने 327 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए थे ताकि एक हाईटेक एजुकेशन प्रमोट किया जा सके, बोथ इन द कॉलेजेस लेवल, स्कूल लेवल एंड एट द यूनिवर्सिटीज़ लेवल, राइट। उसके अलावा जब अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो जो फाइनल किया है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी एजुकेशन है दैट विल मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज बेस, बिकॉज इंडिया को एक नॉलेज हब बनाने की ज़रूरत है। एवरी सिटी, टॉकिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, फ्रॉम ईस्ट to the west, we want or have a knowledge hub, right? And with a faster pace that would focus on basic literacy, numeracy and vocal skilling. So this is something which is very essential, and ultimately the entire aim of the government is to promote the quality education in the country and making the uniformity in the quality education pan India, right? So this is very important. When you write an answer in the mains examination, you have to be thorough with the concept and you have to give a very substantial and a neutral approach in your answer, right? Now coming to the second topic, that is nuclear vulnerabilities. This is there in the Hindu, आपको हिंदू के एडिटोरियल में ये चीज़ें मिल जाएगी। तो this talks about how what has exactly happened in the Hiroshima and Nagasaki. So this is precisely very important for you essay paper। essay में अगर आप लिखोगे उस पर ये फोल्डर पॉइंट के तौर पे यूज़ कर सकोगे, and at the same time it is equally important for your general studies paper 3, right? Now, on August 6, 1945, the US has dropped atomic bomb in the Japan city of Hiroshima and Nagasaki. So this was not on the same day. On 6th of August, first they dropped the bomb in Hiroshima, and after 3 days, the bomb was dropped in the Nagasaki. So Hiroshima and Nagasaki have been two cities where they have seen the nuclear weapons, and apart from this, those two killed in the weapon, the total people they were killed in this two bombing, they were close to 2 lakh people, right? And some of them have instantly within the 5 months, some people died instantly, कुछ लोग तुरंत मर गए, बाकी कुछ लोग बीमारी के वजह से या जो हाई रेडिएशन थे उनके वजह से 5 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। So because of this long lasting effect of the radiation exposure, there were mental trauma and unrest that is going through the savior of this people, because होता क्या है, किसी भी जगह पे इस तरह के अगर अटैक हुए तो उसके जो पोस्ट ट्रॉमेटल इफेक्ट है, जो ट्रॉमा है, जो दर्द है उस चीज़ का, वो कंटिन्यू होती है और कहीं ना कहीं वो आपके जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसको इफेक्ट करती है। सो दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी। सो दिस इज़ नो हाउ डाइवर्सिटी इट कैन इम्पैक्ट, उस चीज़ के बारे में जिक्र की गई है।
नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट दैट इज पोटेंशियल थ्रेट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। तो 1945 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ने और सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इन सारे के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स की अगर बात करें वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पाइल है। एंड न्यूक्लियर वेपन हैज़ बिकम अ mode of mass destruction, okay, and this is a destructive power in comparison to the destroyed in the Hiroshima and Nagasaki। तो उस टाइम पे जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी यूज़ की गई थी, आज के दिन में इन सारे कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इजराइल, इंडिया एंड पाकिस्तान, इनके पास आज की डेट पे जो कैपेबिलिटीज़ है वो उस टाइम पे जो थी उससे कई ज़्यादा गुना अच्छी है और कई गुना ज़्यादा वो बेसिकली इम्पेरियली इम्पैक्ट कर सकती है, लोगों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, राइट। नाउ न्यूक्लियर आर्सेनल की अगर बात करें तो ओवर 1,26,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं दैट हैज़ बिन बिल्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द एटॉमिक एज। और अभी 2000 ऐसे हैं जो ऑल ऑफ देम हैव बीन यूजिंग द न्यूक्लियर टेस्ट। फिलहाल के टाइम में ओवर 2000 न्यूक्लियर टेस्ट हैज़ बीन कंडक्टेड आफ्टर 1945 एंड दिस वाज ऑन द ग्राउंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द एक्चुअल एक्सप्लोजिव पावर। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी न्यूक्लियर पावर दिखाने के लिए अभी तक में 2000 टेस्ट किए हैं। इसमें सारे कंट्रीज़ हैं जापान, चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, रशिया, ये सारे कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है। नाउ न्यूक्लियर वारहेड की अगर बात करें जो रिडक्शंस हैं ग्लोबल टेंशन की वजह से, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वारहेड्स बाय कंट्री 2020 की अगर मैं रिपोर्ट के बारे में बताऊं तो रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और उन्होंने रिडक्श किया है ऑलमोस्ट 125 कंपेयर करेगा 2019 से। यूनाइटेड स्टेट्स के पास 5,800, दे हैव रिड्यूस फ्रॉम 385। चाइना की बात करें तो 320 एंड इंडिया हैज़ 150, राइट। और इंडिया की जो इंक्रीजमेंट देखी गई है वो 0.10 की है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है, जो पाकिस्तान है उनके पास हमारे से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड दैट इज़ 160, बट दिस इज स्टिल न्यूट्रल, दे हैव नॉट इंक्रीज देयर कैपेसिटी, राइट। तो इंडिया इज अमॉन्ग द लास्ट टॉप 3 कंट्रीज एंड पाकिस्तान इज अहेड ऑफ अस। सो दिस थिंग नीड टू बी टेकन केयर ऑफ एंड दिस इज द रिपोर्ट ऑफ सिप्री। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करें जो न्यूक्लियर अटैक है, तो वेरियस अटैक्स होते हैं, दे हैव ऑलरेडी द ग्रेव एंड लॉन्ग लास्टिंग डैमेज टू द इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। ऐसा नहीं है कि जो अगर न्यूक्लियर अटैक कहीं पे हुई है, एटम बम अटैक हुई है, तो उसके जो इम्पैक्ट है वो तुरंत दिखेंगे। इट टेक्स इवन, बताया जाता है कि कुछ 10 साल तक हिरोशिमा नागासाकी में कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे और उससे और लंबे समय तक उसकी एडवर्सिटीज़ अभी भी देखी जाती है। एंड जो न्यूक्लियर वेपन है दे कुड बी लॉन्च्ड एनी टाइम एंड एनी मोमेंट, बट जो टारगेट है वो पूरी विश्व होती है और कहीं ना कहीं जो वनरेबिलिटी है उसका बहुत ही मास डिस्ट्रक्शन होता है पूरे देश पे। साइकोलॉजिकली पोस्ट ट्रॉमा इम्पैक्ट काफ़ी हाई होती है। एंड न्यूक्लियर वेपन्स की अगर बात करें, इट इज सो डिस्ट्रक्टिव दैट नो कंट्री वुड यूज देम बिकॉज सच यूज वुड इन्वाइट रिटेलिएशन इन अ काइंड, बिकॉज इसका कोई अंत नहीं है। और अगर दोबारा एक कंट्री ने किसी पे किया, दूसरी कंट्री उस पर करती है, तो उसके जो इम्पैक्ट है नेबरिंग कंट्रीज पे या जो उसके पॉपुलेशन पे वो काफ़ी हाई है एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक। एक होती है एक क्षति जिसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है, बट टॉकिंग अबाउट द बेसिकली एटम बम एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर, दिस कैन नॉट बी कंपनसेटेड एट एनी कॉस्ट, right? Now the other topic is China stand on Article 370. This is there in the Hindu. So China has given his stand that whatever has happened in the Jammu and Kashmir is not under the human spirit, is a violation of human rights. So let's see what China is saying. So Chinese government said that the unilateral change in that was made in the state of Jammu and Kashmir and the abrogation of Article 370 and 35A, splitting the two state into 2 union territories, is illegal and invalid. So this is what the China has to say. And China also said that India and Pakistan need to resolve this dispute over the Kashmir, the dialogue and consultation. So this is a suggestion which is coming from Chinese end. And last year, Beijing particularly voiced that the opposition to the creation of union territories, that is of Ladakh, that included within the boundaries of a Skychin region now occupied by China. So what they did, some of the reason that is there in the Skychin part, that has been deliberately occupied by the China, right?
So there's some vested interest with the China, and Chinese government has suggested that peaceful coexistence with the several fundamental interests would be both common to the aspiration of international community. So this is what China has to quote, and with this fact that China has taken these issues to the United Nations Security Council, China ने इस बात को यूएनएससी में भी रखने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से पाकिस्तान का डिफेंड कर रहा है, राइट. एंड चाइना होप्स दैट दे कैन प्रॉपरली हैंडल द डिफरेंसेस. चाइना का ऐसा कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान अपने डिफरेंसेस को डायलॉग के थ्रू कर सकती है इम्प्रूव, या फिर अच्छे जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव की जा सकती है. एरिया में पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है. बट दिस इज समथिंग विच हैज़ टू कम फ्रॉम पाकिस्तान. अगर इंडिया चाहे कि ठीक है हमें डेवलपमेंट करनी है, हमें स्टेबिलिटी बना कर रखनी है, और पाकिस्तान अगर आप पे अटैक करे, तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. वी हैव टू रिटेलिएट, राइट. सो अ सिनोनिम्स हैज़ टू बी मेंटेन. और जो यूनिलैटरिटी है या फिर जो एक तरह का जो तालमेल है वो दोनों कंट्री की तरफ से बननी चाहिए. एक तरफ से सिर्फ इंडिया कोऑपरेट नहीं कर सकती है, राइट. सो पाकिस्तान हैज़ टू टेक अ ड्यू इम्पॉर्टेंस एंड दे हैव टू इक्वली मेंटेन द पीस, स्टेबिलिटी एंड द डेवलपमेंट इन द रीजन, राइट. नाउ इंडियाज़ ने इस चीज़ को रिप्लाई करते हुए चाइना को कहा है कि बेसिकली जो इन्होंने कमेंट किया है, ये इस तरह से कमेंट इंडिया इस चीज़ को ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं करती है. एंड दिस इज समथिंग विच हैज़ इंडियाज़ इंटरनल अफेयर्स एंड नो एंट्री कैन दो अदर कंट्रीज कैन इंटरवीन इन दिस. एंड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, चाइना हैज़ नो लोकस स्टैंडाई. नो लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि उस कंट्री की कोई भी स्टैंड नहीं है. दे डोंट हैव द अथॉरिटी टू से एनीथिंग, राइट. एनी स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन द पर्टिकुलर कंसर्न. तो इंडिया ने कंप्लीटली इसको डिलिबरेटली ये कहा है कि दिस इज समथिंग विच चाइना हैज़ नो लोकल स्टैंड एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ दिस ऑफिशियल कम्युनिकेशन विद द चाइनीज गवर्नमेंट. ना बात करें अर्बन माइग्रेशन एंड हार्डशिप की, तो जो कोविड-19 के बाद जो अर्बन माइग्रेशन की जो सबसे ज़्यादा बेसिकली जो परेशानी देखी गई है, उसके जो हार्डशिप्स हैं उसके बारे में जिक्र है. तो देखते हैं. ऑलमोस्ट 93% ऑफ द इकोनॉमी इज इनफॉर्मल. एज यू नो, मेनी ऑफ द पीपल, ऑलमोस्ट 93% ऑफ पीपल वर्क इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड ओनली 7% ऑफ द पीपल वर्क इन द फॉर्मल सेक्टर. सो मोस्ट अदर वर्कर, जो भी 93% में जो लोग कैटेगरी में आते हैं, वो सफ़र करते हैं जॉबलेसनेस से और लॉन्ग पीरियड के लिए. इट्स नॉट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, इट्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. एंड वेन फेस्ड विद द इमिनेंट थ्रेट, होता क्या है कि उनके जो फैमिली है उनको प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम के निदान के लिए, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए द पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ मनी, राइट, इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड. तो माइग्रेशन पॉपुलेशन की अगर बात करें, तो जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल माइग्रेशन रही है इंडिया की सेंसस 2011 के मुताबिक, सो दिस इज क्लोज टू 45.36 करोड़. और ये अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें कंट्री की, तो 37% ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की, दैट इज ह्यूजली माइग्रेटेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. सो दिस इंक्लूड इंटर स्टेट माइग्रेशन and the migration within the each state, with the recent exodus of the largely due to the movement of interstate migration. तो सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन देखने को मिली है वो इंटरस्टेट माइग्रेशन में देखने को मिली है. नाउ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो आपको पता है जो फिनेंशियल हार्डशिप है दैट है प्रमोटेड टू अर्बन बेसिकली माइग्रेशन. हो क्या रहा है कि एक इंडिविजुअल, अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रिशियन है, अगर वो उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, या फिर कोई बेसिकली बहुत ही अच्छा स्किल्ड है कोई इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, तो उत्तर प्रदेश में उसको क्या है, काम नहीं मिलेगा. सो ही हैज़ टू मूव ईदर टू सदर्न इंडिया और टू मुंबई और टू एनी अदर प्लेस वेयर द वर्क इज बीइंग असाइंड. So there's a urban migration. There's a lot of urban migration which is coming from this tier 2 or 3 cities. And Indian laboring class are much less readily by the joblessness and unemployment. So इस जगह के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा highly unemployed है, despite the fact कि they have good number of skills and good knowledge of any other sector they are working for. Now डेटा की अगर बात करें, एक रिपोर्ट है बेसिकली CRB की सर्वे है, उनके मुताबिक इट शोज दैट 80% ऑफ द यंग इंडियन हैव द मिनिमल लाइफ ऑफ देयर पेरेंट्स. बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने घर परिवार को छोड़ के बाहर में रह रहे हैं, और जिस वजह से उनके पेरेंट्स की जो लाइफ स्पैन है वो भी काफ़ी कम हो गई है. एंड इवन यू गवर्नमेंट CPR मिले सर्वे के मुताबिक 2020 के, सो दे डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स रियल स्टेट प्रॉपर्टी एंड सेव देम फॉर द स्टार्ट. तो जो उनकी जो बेसिकली जो फादर ने जो चीज़ें मनी एक्यूमुलेट की है, या फिर जो हेरिडिटरी
मनी है उसको यूज़ करके आगे अपने काम को बढ़ाने में वो मदद कर रहे हैं. So there has to be intervention from the government where a collateral free loan has to be provided for the entrepreneurship for any other work which individual want to start as an initial basis, right? And I want to tell you that we have started daily answer writing practice जहाँ पे आपको हर सुबह क्वेश्चंस मिल जाएगी और आप अपने आंसर हमें 6 PM तक भेज सकते हैं. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर ले जहाँ पे मैंने इसके लिए जानकारी दी हुई है. Now coming to the answers of the yesterday question. So the first question is coming from the question number 1. The answer here is B. The correct answer is B. The religious practice in many dimensions were not confirmed in just one particular mode of worship. So multiple form of worship were existed, and the worship of Yashika's mother goddess were prevalent during this time, and Buddhism became the most popular and social religious movement. Right. So this is the correct explanation of the question, and the source of the reference here is NCERT class 11th. Now the second question, the correct option here is B, that the number of elected members in the Imperial Legislative Council and the Provincial Council were increased. In the Provincial Council, the non-official member were introduced since some of the non-official were nominated and not elected. So this is the point to note. And the overall elected majority remained. And in the Imperial Legislative Council, the total 68 members, 36 were voted to be the official and 32 were non-official and 5 to be nominated. So this is a segregation of the Legislative Council. You can find this detail on the NCERT class 12. Now coming to the today's question, आज के जो MCQs के सवाल उसके तरफ आगे बढ़ेंगे. So the first question is from the static portion of Indian economy. With among the following is the advantages or benefit of issuing the masala bond. So first, it promote or allow the currency convertibility, and the offshore investor earn better return by investing in the masala bond. So ये जो दो स्टेटमेंट है मसाला बॉन्ड को लेकर के, मसाला बॉन्ड पे यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछे हैं और एक ऐसी टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं इकोनॉमी के कंटेम्प्रेरी पे भी और कॉन्सेप्चुअल बेस पे भी, राइट. तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप हमें बता सकते हैं, ए है, बी है, सी है या फिर डी है. So whatever you feel is the correct answer, you have to write your answer in the comments down below. Now coming to the second question, this is from the static portion of Indian history. With reference to Gadar party, consider the following statement. The party was formed around the weekly newspaper Indian Mirror. So this is one statement. Now the second statement is the headquarter of the Gadar party was located in the San Francisco. So what a time UPSC tend to change this headquarter and the newspaper name. So you have to be thorough with the concept and the content which is asked in the examination. और कल के जो आंसर्स होंगे उसमें फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन में भी बताऊंगा. So you have to tell me the correct answers A, B, C and D. Whatever is the correct answer, you can write your answer and do participate. Write your answer. Many of you are not commenting what is the correct answer. So I request you to please participate and write most of the answer in the comment section, right? And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.